Hello, good morning all. Welcome to my channel. Here is Urvashi Mittal, and I have announced that I will start the session, revisionary session of time of supply of goods with you all, and I'm sharing this with you all too. So in earlier session that yesterday I have done with first session of time of supply, which is on teachment, and there I've covered the section 12 subsection 1 and 2, which is read with section 31. So in this area there are three sections which is covered in CMA Inter in time of supply, which is section 12, section 13 and section 14, and there are some interrelated sections with it to explain the whole of the section. So in crux I will discuss the yesterday's video, which is 12 subsection 1, which says that liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in terms of the provisions of this section. This section is saying that कि आपकी liability कब arise होगी goods पे, टैक्स देने की goods पे, वो arise होगी जो भी टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से, कोई भी प्रोविजंस में जो भी सेक्शंस लिखे होंगे उसके हिसाब से, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी प्रोविजंस के, उस हिसाब से राइज होगी. तो ये मेजर सेक्शन नहीं है. द मेजर सेक्शंस इन सेक्शन 12, मेजर सब सेक्शंस आर सेक्शन 12(2) and it goes to 12(6). Okay, so what is section 12 subsection 2? 12 subsection 2 says that the time of supply of goods shall be earlier of the following dates, namely the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required under section 31 to issue the invoice with respect to the supply, or the date on which the supplier receives the payment with respect to the supply. Okay, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. ओके, तो अब मैंने एक चीज़ कल डिस्कस करी थी कि इसमें सेक्शन 31 का जिक्र हो रहा है, एंड इट इज 31 सबसेक्शन 1, एंड विच सेज दैट there are two conditions in it, there are two criteria in it basically. It involves two, that first is when the supply involves movement of goods, and second is the case when the supply doesn't involve movement of goods. Okay, so in first case the time of supply will arise at when the goods get removed for supply to the recipient, and in second case the delivery of goods or making available thereof to the recipient. आपने recipient को available करवा दिए, डिलीवरी कर दी, मतलब जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. ओके, तो ये दो केस भी कंसीडर होते हैं while the first point is where the first point is date of issue of invoice by the supplier and the last date on which is required under section 31. So it is basically 31 subsection 1. Okay, and or to the date on which the supplier receives the payment. ठीक है, अभी सेक्शन 31 का हो गया. अगर हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, रिमूवल ऑफ गुड्स, और हमें अलग अलग क्राइटेरिया में दिया होगा कि वो उसमें गुड्स मूवमेंट में इन्वॉल्व, मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, तब उस हिसाब से हमें चूज़ करना होगा. ओके, और सेकंड है आपका डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई. तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा. एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज बी, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट shall be the date on which the payment is entered in the books of accounts, or the date on which payment is credited to the bank account whichever is earlier. जो भी पेमेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में डाली जाएगी या बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी सप्लायर की, हम ही सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, whichever is earlier.
ठीक है, इन दोनों में से जो चीज़ अर्लियर होगी वो हम इसमें काउंट करेंगे। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में ऐसे दे दिया जाता है कि आपको सीधा पेमेंट डेट ना देके वो आपको ये दे देगा कि बुक्स में कब एंटर हुई है, बैंक में कब क्रेडिट हुई है, और आपकी इनवॉइस डेट ऑफ इनवॉइस ये है। तो पहले आप इन दोनों में से फर्स्ट कंसीडर करेंगे। हियर यू सी दैट कि कब आपकी अकाउंट्स में आई है, कब बैंक में गई है, इन दोनों में से पहले अर्लियर देखेंगे, देन यू कंपेयर इट विद द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ओके, एंड डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस में भी आपको मैंने अभी बताया था कि सेक्शन 31 भी रिलेट खाता है। अगर ये भी आपको अलग अलग दे रखा है, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपिएंट विद द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी अगर आपको अलग अलग दे रखी हैं तो पहले इन दोनों में से अर्ली यू विल चूज, एंड इन दोनों में से फिर अर्ली यू चूज, देन यू कंपेयर विद बोथ ऑफ दीज एंड दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम एक बार क्वेश्चन करेंगे आईसी में स्टडी मैथ से, सो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आगे सेकेंड पॉइंट है आपका, प्रोवाइडेड दैट विद द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स receives an amount of taxable goods, receives an amount up to 1000 in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall at the option of said supplier be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम कि where the supply of taxable goods, सप्लायर टैक्सेबल गुड्स की अमाउंट रिसीव करता है अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। मीन्स अगर वो 10,000 तक का इनवॉइस है एंड आपको 1000 ऊपर मिल रहा है, इवन 11,000 मिल रहा है, तो द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच शेल एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, वो एक सप्लायर के ऑप्शन में होगा कि या तो वो इनवॉइस को इशू के टाइम पे ही कर दे या वो बाद में जब उसकी पेमेंट उसके अगेंस्ट इनवॉइस इशू होगा तब उसे कंसीडर कर ले। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें तो अगर ये एक्सेस हो गया 1000 से ज़्यादा हो गया तो देयर इज नो ऑप्शन एट द पॉइंट ऑफ सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इट इज अराइज एट दैट पॉइंट ओनली। ओके, so I think I have covered in short what is section 12.1, 12.2, its relation with section 31.1 and payment को हम किस तरह कंसीडर करेंगे वो। अब एक पॉइंट और है इसके अंदर